So before this inverse trigonometric function, we have to discuss about the functions. ठीक है, functions हम पहले डिस्कस करते हैं. सिर्फ functions में हम उतना पार्ट डिस्कस करेंगे which we need for this chapter. ठीक है, फिर relation and functions हम फिर इसके बात करते हैं. जी So for this inverse trigonometric function, we will start with functions. So what is a function? A relation from set A to set B is called a function if first part each element of set A have the images in set B. Each element of set A should be associated to unique element of set. ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन को हम डिवाइड करते हैं इन टू स्टेप्स सो दैट हमें याद रहे, हम कोई मिस्टेक नहीं करें. सपोज वी हैव दिस सेट and this have the value, suppose a1 a2 a3 a4, and B have the elements b1 b2 b3 b4. ठीक है, so we will say that relation from set A to set B is called a function if first part is each element of set A have their images in set B. So set A में जितने भी elements हैं सबकी images होनी चाहिए. First condition ये, ठीक है, जैसे यहाँ A1 A2 A3 है, सब एसोसिएट होनी चाहिए विद B1 B2 B3 किसी से भी, बट यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेजेस नहीं हो. ठीक, फर्स्ट कंडीशन ये. सेकंड है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. यूनिक एलिमेंट का मतलब कि A1 सपोज दिस इज एसोसिएटेड विद B1, A2 with B2, A3 with B3, A4 with suppose B4, एंड फिर अगेन A3 B4 से एसोसिएट हो गया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. A3 should be associated to a unique element only. A3 सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो सकते हैं, दो से नहीं हो सकता. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, एंड सपोज अगर हमारे पास ये है लाइक दिस, ये ठीक है, दिस कैन बी अ फंक्शन क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एसोसिएट हो रहे हैं. सेकेंड कंडीशन के यूनिक से होना चाहिए. तो यहाँ देखिए A1 A2 A3 सबकी सिंगल इमेजेस है. A3 A4 की सेम इमेज है, दैट डजंट मैटर, बट सबकी सिंगल इमेजेस है. ठीक है युवराज? यस. ओके, देन टेल मी दिस थिंग. Suppose this is a set, this is A, and this one is B. Suppose set A is A1, A2, A3, A4. Next B हमारे पास suppose B1, B2, B3, and B3. Okay, A1 is associated with this, A2 with this, A3 with this. Now tell me, this is a function or not? No, sir, because each and every element of set A is not associated with the set B element. Okay, now check this one, A and B. We have A1, A2, A3. We have B1. This one. This is a function. Yes, sir, this is a function because each element of set A has a unique element of set B associated to a unique element of set B. Now this is a function. Yes, sir, still it's a Now this is a function. yes, sir. Okay. Now in this case,
Now this is a function. Sir, it's the same. There's a function. Okay. So this function part is clear. Please note down this. Yes, sir. कर लिया मैंने. Okay, okay. Next, we have types of functions. Types of functions. So we have different types of function, but for inverse, we just need one function. Function is said to be. Function is said to be one. Sorry. A function from set A to set B is called a one function if each element all elements of the have different images in set B. Okay, so what is a one function? A function from set A to set B is called a one function if all elements of set A have different images in set B. For example, we have this. This is set A, this is set B. This is A1, A2, A3, A4. And here we have B1, B2, B3, B4, B5. A1 with this, A2 with this, A3 with this, A4 with this. Now, this is called a one function because all elements of set A have different images in set B. ठीक है A1 की suppose जो image है that is B1, A2 की भी different है, A3 भी है, and A4 is also different. Suppose we have this set A1, A2, A3, and next we have B1, B2, B3, B4. Okay, then this is not a one function because यहाँ A1 and A2 की same image है B1. So this is not a one function. ठीक है? This is a one function because here A1, A2, A3 and A4 have different images in set P. Clear हुआ युवराज? सर सेट जो सेकंड वाला है वो नहीं होगा ना. हाँ ये नहीं होगा. जी ठीक है. ओके सर ये मेनी वाला हो गया. मेनी फंक्शन, मेनी वन फंक्शन. ये मेनी वन हो गया फिर. Now suppose if we have this B3, B4 with this and with this. ये बताइए there is a one function or not? Yes sir, it is a one. It is a one. नहीं है ना क्योंकि A4 की कोई इमेज नहीं है. Yes sir. So this is not a function. Function नहीं है तो one भी नहीं होगा. जी ठीक है युवराज. ओके नोट के लिए युवराज इसको. युवराज नोट किया इसको. जी सर. ओके सेकंड करते हैं. सेकंड इज ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन a function from set A to set B is called
called onto function if all elements of set B have their pre-images in set B. ठीक? So what is the onto function? A function from set A to set B is called onto function if all elements of set B have their pre-images in set A. So for example, we have this case. This is set A, this is B, and we have this A1, A2, A3, and A4. Suppose this is B1. So B1 is associated with this, this, and this. So in this case, we will say that this is a onto function. ये onto में कंडीशन क्या होती है? आपके पास सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके प्री इमेजेस होनी चाहिए, यानी यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज नहीं है. ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल. इसमें सेट बी के सब कनेक्टेड होने चाहिए. सब होने चाहिए और ए के तो होंगे, अदरवाइज फंक्शन ही नहीं होगा. जी सर. ये तो हमेशा होता है. अब हमें यहाँ फोकस करना है ऑन बी. सो बी में अगर हमारे सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस है, सो दिस इज ऑन टू फंक्शन. ठीक है. वी विल टेक एग्जांपल. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. This is A1, A2, A3, and suppose P1, P2. Okay, Yuvraj, this is onto? No, sir. This is 1, 1? No, sir. 1, 1 meaning, okay. Now suppose we have this P3 and P4. This is 1, 1? Yes, sir. This is onto? No, sir. Okay. Please note down this thing. So there is an onto function. Done, sir. Now third. Third is bijective function. Bijective function. A function is said to be bijective if it is both 1, 1 and if it is both 1, 1 and onto. Take your brush, please note down this. Give me a minute. Okay, Yuvraj, shall we start next? Yes, sir. Okay, so bijective function के example क्या हो सकता है? Suppose we have this set. This is A. सर एक ही हो सकता है इसका कि हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट B से कनेक्टेड हो सिंगली. बिल्कुल ठीक. Sorry, this is B1. This is B2. This is B3. A1 with B1, A2 with B2, A3 with B. So this is 1, 1 function because A1, A2, A3 have different images. This is onto function because all the elements in set B have their
pre-images inside here. So this is an example of bijective function. So अब अगर function bijective है, suppose ये एक हमारा function था a to b, ठीक है, there is a function. एक और एग्जाम्पल हम इसमें लें. ओके, नाउ अगर हम अब इस फंक्शन को जस्ट रिवर्स कर देते हैं, मतलब हम एक न्यू फंक्शन फॉर्म कर देते हैं g विच इज फ्रॉम b टू a, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक फंक्शन ऐसे फॉर्म किया b टू a, दिस इज b एंड दिस इज a, तो हमने यहाँ चेक किया a1 की जो इमेज थी दैट इज b1. सो इन दिस केस हमने b1 लिखा, हमने इसको एसोसिएट किया विद a1 एंड दिस वन. नेक्स्ट वी हैव दिस b2, इसको हमने किया विद a2. नेक्स्ट वी हैव b3, इसको हमने किया विद दिस ठीक है. सो ये एक न्यू फंक्शन हमारे पास मिल गया विच इज फ्रॉम बी टू ए, एंड इमेजेस कुछ ऐसी हैं दैट a1 इज द इमेज ऑफ b1 लाइक दिस, ठीक है. अच्छा युवराज, पहले हम चेक करते हैं कि अगर 1 1 नहीं होता देन क्या ये फंक्शन हम फॉर्म कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन सपोज 1 1 नहीं है. 1 1 नहीं का मतलब we have this, let this be a, this is b, this is a1 a2 a3. सर वो तो हमारा ऑन टू से फर्क पड़ेगा ना, 1 1 तो सर एडजस्ट हो जाएगा शायद रिवर्स में. ओके चेक करते हैं अभी. this with this, this with this, this with this. now tell me ये 1 1 है या नहीं. यस सर. 1 1 है. जी सर. 1 1 ओह सॉरी, नहीं है सर, नहीं है. 1 नहीं है. ऑन टू है. यस सर, ऑन टू. ऑन टू है ना. अब 1 1 है ये फंक्शन. अब इसका हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं. now we have this set b, we have this set a, this is b and this is a. so what is b? B is b1 b2 and this is a1 a2 and a3. अब यहाँ क्या था, a1 was associated with b1, so हमने इसको कर दिया with this, a2 with b1, so इसको भी हमने कर दिया like this, and b2 with a3. now this is a function. सर ये 1 1 है. ये 1 1 ये function है युवराज. यस सर. वेट, नहीं सर, क्योंकि इसकी b की दो स्पेशल यूनिक एलिमेंट नहीं हुआ. so this is not a function. जी सर. इसका मतलब अगर 1 1 नहीं था फंक्शन देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस. यस. ठीक है. अब हम ऑन टू चेक करते हैं. नाउ सपोज फॉर ऑन टू वी हैव दिस, now this is function a, this is b, let this be a1 a2 a3, this is b1 b2 b3. now युवराज ये फंक्शन 1 1 है. यस सर. ऑन टू नहीं है सर. ऑन टू नहीं है. अब इसका इनवर्स फाइंड चेक करते हैं, अब इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है या नहीं. सर वो फंक्शन ही नहीं होगा इसका इनवर्स, क्योंकि b3 से किसी से होगा ही नहीं. b1 b2 b3 and this is a1 a2, so this with a1, this with a2, so b, so this is not a function. ठीक है. हमने चेक कर लिया कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है देन वी कांट फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन. अगर ऑन टू नहीं है तब भी फाइंड नहीं हो सकता. सो इनवर्स फाइंड करने की कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा ओनली इन दैट केस यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. यस सर. ओके सो प्लीज नोट डाउन दिस. रिलेशन एंड फंक्शन में भी आपने किया होगा, उसमें भी क्वेश्चन होता है. फर्स्ट हमें चेक करना होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, देन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट. ठीक है. हाँ इसको प्लीज नोट कीजिए.
Done, sir. Then we will start inverse of a function. ठीक है, inverse होता क्या है? Inverse of a function. Let f a to b is a function, is a bijective function. So bijective function. Then g b tells to a, then a function which associates all elements of b to a unique element of set A is called inverse of a function, and denoted by f inverse. So suppose हमारे पास एक सेट है like this. This is f a to b. This have the element a1, a2, a3. This is b1, b2, b3. So this with this is this and this, and we have another element b2a. This is b1, b2, b3. This is a1, a2, a3. Okay. So if this is a function and this is another function b2a like this, then this g is called the inverse of f. Okay. This function is called the inverse of f. So we can also write if f is a function from a to b, then in that case f inverse क्या हो जाएगा? b2a. Which associate all elements. इसको ऐसे करते हैं युवराज, ऐसे लिख देते हैं all elements of y belongs to set B. X belongs to set A, ठीक है, such that fx is equal to y. ठीक है, इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ. It's called inverse of this. ठीक है, अभी हमने अभी जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने इसको मिस किया था. उसमें कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सपोज अगर आप जी b2a फॉर्म कर रहे हैं, देन मे बी आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं b एंड a, एंड सपोज यहाँ अगर आपके पास b1 है, यू कैन एसोसिएट विद a2. ठीक है, इसलिए हमने ये स्पेसिफाई कर दिया कि fx इज इक्वल टू y होगा. fx इज इक्वल टू y का मतलब अगर हमारे पास पहले a1 की इमेज b1 है, देन जब हम इन्वर्स फॉर्म करेंगे तो b1 की जो इमेज होगी दैट शुड बी a1. ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को और ऐड कर दिया, सच दैट fx इज इक्वल टू y. ठीक है युवराज, क्लियर हुआ? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज वी हैव दिस फंक्शन a to b. This Yes, is a bijective function. In that case, if there is a function, if there is another function g b to a, such that fx is equal to y. fx is equal to y का मतलब a1 की अगर इमेज b1 है, and we are writing b1, image of b1 is a1 like this, then this is called the inverse of f. So this yes, also be written as f inverse b to a. So inverse clear हुआ युवराज?
यस सर, इनवर्स क्लियर हो गया, बट fx इज इक्वल टू y वाला एक बार समझा दो सर प्लीज, जो हमने लिखा है y बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। हाँ, सो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फॉर एग्जाम्पल एफ ए वन अगर हम फाइंड करते हैं युवराज, तो सर आज एक मिनट सर, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a, मतलब a वाला सेट जो है, जो फंक्शन में डलती है जिसकी वैल्यू, उससे y की वैल्यू आ गई, तो वो इसलिए fx इज इक्वल टू y हो गया। और जब हम इसमें, लेकिन जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो is a bijective function, the g b tends to a, which associates all element y to a unique element x belongs to a, such that the inverse function of f is denoted by this। तो सर f of x tends to f of x is equal to y तो फंक्शन के लिए डिनोट नहीं हो गया, और x a वाले सेट में है और y b वाले सेट में, तो इनवर्स में तो f of y is equal to x नहीं हो जाएगा। अभी युवराज बात करते हैं। फर्स्ट टेल मी दिस थिंग कि ए वन जो है एफ ए वन, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर b1। b1, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? एफ एक्स, हमने इनवर्स नहीं लिखा। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट वहां हमें एफ इनवर्स लिखना चाहिए था। नाउ इफ सपोज वी हैव दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स हम कहाँ से चूज करेंगे? फ्रॉम सेट ए और सेट बी? सर x हम चूज करेंगे सेट a से। सेट ए से। और वाई हम कहाँ से चूज करेंगे? सर b से। बी से। सो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। a2 इज इक्वल टू b2, a3 हमने चूज किया b3, ठीक है। सो अब हम कह रहे हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ y बिलोंग्स टू b टू यूनिक एलिमेंट x टेंड्स टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। यानी हम ये कह रहे हैं कि एक हम g b टेंड्स टू a फंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, बट वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा? दिस वन, फंक्शन की पुट करेगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ b1 लिख रहे हैं तो b1 शुड बी एसोसिएटेड विद a1। a1 yes। आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बट वो ये होगा कि एफ इनवर्स, क्योंकि ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, जी यहाँ हम सर, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? वी विल पुट b1, a1 yes b1, b1। ठीक है। नाउ दिस विल गिव यू a1। जी हम सर। ये क्यों लिखा? क्योंकि हमने ओरिजिनल फंक्शन से लिया। हमने कहा हाँ जी ओरिजिनल सर। फंक्शन में a1 की हम सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं कि a1 की जो इमेज है दैट इज b1, a2 की जो इमेज है दैट इज b2, a3 की जो इमेज है दैट इज b3। जी तो सर। y कहाँ से आ रहा है? y यहाँ से आ रहा है। x कहाँ से आ रहा है? x यहाँ से आ रहा है। अगर हम इस पोर्शन को मिस कर दें तो क्या होगा? जी b28 तो फॉर्म हो जाएगा, बट वी हैव द चॉइस कि b1 को हम किसी और से एसोसिएट कर दें, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी, जी सर। ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ युवराज, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हाँ जी ओके, तो इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होती है? सर, कंडीशन यही होती है कि ऑन टू और वन वन होना चाहिए सर। एक्चुअली इट शुड बी बाइजेक्टिव फंक्शन। बिल्कुल ठीक है। नाउ अब हमारा चैप्टर क्या था? चैप्टर वाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ टेल मी कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, दे आर बाइजेक्टिव और नॉट? सर यस सर, तभी तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, अगर एंड ऐसा, सर वैसे भी उसकी वैल्यू 1 to -1 में वेरी करती है, तो थीटा बदलते हैं तो हर एक वैल्यू एसोसिएटेड होती okay, if such is the case, then suppose we will take sine theta। है। सर एक मिनट, जैसे साइन थीटा है तो सिंगल, हाँ सर सिंगल वैल्यू ही होती है, तो वो हो जाएगा। यस। okay, बट सर नहीं होगा, जब हम उसे इन्वर्स करेंगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि किसी किसी की तो दो वैल्यूज भी आ सकती है। okay, then जैसे 0। जैसे वन हो गया तो साइन साइन ऑफ व्हाट यू से 90 डिग्री वन हो गया, और साइन ऑफ 180 डिग्री भी वन हो गया। -1 1 -1 0 and 1 0 and 1। so sine 0 is 0, sine 90 is 1, and 180 is again 0। so this is not a bijective function, नो सर। so we can't find the inverse, but chapter is inverse trigonometric function। so take your time, थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिए कि अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है देन हाउ कैन वी फाइंड द
inverse of it. I'm drawing a graph of sine. Take 5 minutes and tell me कि ऐसा कैसे possible है. सर इसमें हमें बेसिकली इसका इनवर्स ढूंढना है ना। इसको ऐसा करते हैं x y लिख देते हैं, ठीक है। तो सर इनवर्स सर ऐसे कर सकते हैं कि साइन का इनवर्स जो होता है वो 1/sin हो गया तो 1/sin कोसेक हो गया। बट एंड कोसेक अगर 180 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं cos 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। ओके, बट द पॉइंट इज कि अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है देन हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ इट? फर्स्ट सर कंडीशन, बाइजेक्टिव बना लेंगे ना उसे, मतलब अगर नहीं है तो फिर थीटा माइनस 90 माइनस थीटा करके वो बना लेंगे उसे, अगर पॉसिबल होता है कि उस साइन को कॉस में बदल के आना सर। यहाँ तो सर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे जो मुझे ग्राफ से समझ आ रहे हैं। या तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेंगे, काफी क्लोज, ठीक है। थिंक अबाउट दिस, और तो सर बाइजेक्टिव हम सिर्फ 90 डिग्री तक वैल्यूज लेंगे, उसके आगे लेंगे नहीं, मतलब प्लस माइनस 90 डिग्री। प्लस माइनस 90 ले लें, यानी माइनस पाई/2 से पाई/2 तक। सर माइनस पाई से पाई तक, मतलब -80 हो। वैसे -π/2 से π/2 तक, वो जो मर्जी कह लो सर। ठीक है, अगर सपोज हमने इसमें क्या किया, लेट वी टेक दिस पार्ट, हमने अगर माइनस पाई/2 से ये पार्ट लिया, ठीक है। जी सर। सो ये तो ठीक है, y तो यही रहेगा -1 0 एंड 1। -π/2 से सपोज हमने अगर -π/2 लिया, then after this we will take 0 and we'll take π/2। तो -π/2 के लिए आपकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी -1, 0 के लिए 0, π/2 की 1। अब हम ग्राफ देखते हैं ना, दिस इज x एंड दिस इज। अब युवराज हम ले रहे हैं -90 to 90, ठीक है। अब इतने याद होगा हमने 11th में किया था दैट जस्ट कि हम जो डोमेन लेते हैं दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। डोमेन हम हमेशा लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस, रेंज जो आती है दैट इज ऑन वाई एक्सिस। तो ग्राफ से अगर हमें चेक करना है बाइजेक्टिव है या नहीं, तो हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं, -π/2 to π/2 है, और इसकी जो रेंज हमें मिल रही है दैट इज ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली इसकी भी रेंज हमें मिल रही है ऑन वाई एक्सिस। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ इसकी कंप्लीट रेंज डिफरेंट आ रही है। अगर हम सिर्फ ये पार्ट एक ले रहे हैं, ओनली दिस पार्ट, देन आवर रेंज इज डिफरेंट, ठीक। सो इट्स मीन अगर हमें और सारी वैल्यूज भी आ रही हैं, ये -1 है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सो अगर हम -π/2 to π/2 लेते हैं तो हमारे पास रेंज भी कंप्लीट आ जाएगा और फंक्शन भी बाइजेक्टिव होगा, एंड देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इफ वी टेक दिस इंटरवल -π/2 पाई, ठीक है। हम इंटरवल कौन से चूज करेंगे जिसमें हमारी रेंज भी कंप्लीट हो जाती है, ऐसा ना हो कि रेंज मिस हो जाए, तो रेंज भी कंप्लीट हो जाती है प्लस कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं होती है, देन वी कैन फाइंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस क्या हैं, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर π/2 से 3π/2, हाँ जी सर। है ना। नेक्स्ट 3π/2 से नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा 5π/2। सर और -3π/2 से 3π/2 भी कर सकते हैं। नहीं, वो तो वहां रिपीट हो जाएगा ना, -3π/2 का मतलब यहाँ। जी सर। अब -3π/2 टू 3π/2 कर रहे हैं, तो यहाँ तो देखिए रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं, हाँ हाँ यहाँ के लिए भी यस वैल्यू, इसके लिए भी, यानी वी हैव टू टेक दैट इंटरवल जहाँ फर्स्ट थिंग रेंज भी कंप्लीट हो जाती है प्लस और रेपिटेशन भी नहीं होता। हाँ, तो वी हैव अ डिफरेंट चॉइस, दिस वन, दिस एंड सो ऑन, इनफाइनाइट चॉइसेस है हमारे पास, बट कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। अदरवाइज आप एक डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेंड और डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हम लेते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल
So for sine that branches minus pi by 2 to pi by 2, यानी अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है फॉर साइन, तो हम जो ब्रांच लेंगे दैट इज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, इसके लिए आपका जो साइन है वो बाइजेक्टिव है एंड देन वी कैन फाइंड द इनवर्स। कितना क्लियर हो युवराज? जी सर, मतलब सर मैंने इस यूनिट की एक चीज नोट करी है, इसमें आप जो चाहो वो प्रूफ कर सकते हो। जो चाहो प्रूफ कर सकते हो मतलब? जैसे सर फंक्शंस थे, मतलब स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट चैप्टर था जिसमें रिलेशंस थे, तो रिलेशंस में काफी ऐसे भी थे जो प्रूफ करते थे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है या वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव नहीं है, और वो नहीं है, क्या कहते हैं, आंसर उसमें फिर आप ऐसे एग्जांपल्स भी ले सकते हो कि वो प्रूव कर दे कि हाँ ये नहीं है या ये है। तो बेसिकली आप क्वेश्चन में आपको खुद ही दे देता है आपको क्या प्रूव करना है, आंसर आपको क्वेश्चन में ही दे देता है। अगर प्रूव कहता है तो फिर जो उसने लिखा है वो प्रूव करना है, अगर चेक कहता है तो सबको रॉन्ग प्रूव कर देना। अगर उसने कहा चेक तो सबको रॉन्गली, जरूरी नहीं ना। अगर वो है सपोज रिफ्लेक्सिव है और वो कह रहे हैं चेक वेदर इट इज अ रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो मतलब मुझे उसकी एक चीज नहीं समझ आई उसमें, मतलब यूजुअली जब ऐसे आता है रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो हम वो क्वांटिटी ढूंढते हैं ना जो वो प्रूव कर सके कि वो नहीं है, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि है या नहीं। युवराज तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने मैंने क्वेश्चंस करे हैं तो उसमें यही आ जाता है कि वो नहीं है, फ्रैक्शंस में लेके या कुछ ऐसे लेके। ओके युवराज, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, क्या कह रहे थे आप? सर जैसे ये आते हैं कि शो दैट तो वाले तो सर उसमें बताया ही होता है, उसमें तो पता ही लग जाता है कि ट्रांजिटिव वगैरह है, उसके हिसाब से वैल्यू लेके आप शो कर सकते हो। बट सर जब आते हैं चेक वाला क्वेश्चन, तो चेक वाले क्वेश्चन में आपको यही देखना होता है ना कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे प्रूव हो जाए कि ये नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, कम वो नहीं है। नहीं, चेक में बट श्योरिटी नहीं है ना चेक में। चेक में अगर वो कह रहे हैं कि चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट, तो हमें कैसे पता कि वो नहीं है? अगर वो होता है तो आपको ट्रू प्रूफ करना होगा, जी सर। है ना। उसमें क्या होता है युवराज, अगर वो कह रहे हैं ना आपसे कि चेक प्रूव दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव, तो आपको एक जनरल मेथड यूज करना होता है टू शो दैट। बट अगर वो कह रहे हैं कि दिस इज फॉल्स, रिफ्लेक्सिव नहीं है, यू कैन गिव अ सिंगल एग्जांपल। जी सर। ठीक है, तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, वी विल ड्रॉ द ग्राफ, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द इनवर्स ऑफ फंक्शंस। पहले इसकी या डोमेन फाइंड करते हैं, फिर यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ कैन वी फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो डोमेन क्या होगा इसका? सर माइनस माइनस पाई बाय टू, 0 पाई बाय टू। नहीं, डोमेन 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 ऑफ साइन। इनवर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट साइन फंक्शन। कंप्लीट साइन फंक्शन सर, सर कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। हाँ, डोमेन इज आर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। यस सर। एंड व्हाट इज रेंज? सर रेंज -1 to 1। -1 to 1। ठीक। सो अब इनवर्स की अगर हम बात करते हैं, ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है राइट, दिस पार्ट। अब इसमें क्या होगा, डोमेन एंड रेंज। हम क्या करेंगे, हमारी जो पहले वैल्यू थी x में थी और जो हमें रेंज मिलता था दैट इज y, तो हम इनवर्स फाइंड करें तो चेंज हो जाएगा, डोमेन यहाँ y में चला जाएगा और जो रेंज है वो हमारा x पे आ जाएगा। बट इसके लिए कंडीशन क्या थी, इस पार्ट को हमें फिक्स करना होगा, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक है, जी सर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब ये हमारा रेंज था तो ये अब हमारा डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और रेंज जो हो जाएगा हमारा दिस इज -π/2 to π/2।
अपोजिट हो जाता है। जो रेंज था वो अब डोमेन हो गया, और जो डोमेन था वो रेंज आ गया। ठीक है, बट क्या होगा, यहाँ हम से वैल्यूज लेंगे फ्रॉम -π/2 टू π/2। इतना क्लियर? यस जी सर। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस ग्राफ। ठीक, जब हो जाए युवराज प्लीज बता दिएगा। डन सर। डन। हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो चेक करते हैं यहाँ से। अब ग्राफ कैसा हो जाएगा, पहले x ये था, y ये था, हमने क्या अब किया? सर x हो जाएगा -1 to 1 और y हो जाएगा -half to 1/π/2 to -π/2। अब क्या हो रहा है, यहाँ जो वैल्यूज आ रही हैं, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा फिर π/2, और ये आ जाएगा -π/2। ठीक है, जी सर। पहले क्या था, -1 to 1 यहाँ था, अब x एक्सिस पे हो गया, ये यहाँ चला गया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो करना क्या है, सिर्फ इस ग्राफ को थोड़ा सा रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो ये ग्राफ अब हो जाएगा लाइक दिस। जी सर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। एनी डाउट इन दिस युवराज? नो सर। ओके, सो इसका डोमेन कितना है? सर इसका डोमेन -1 to 1। -1 to 1, and range? सर π/2 to -π/2। Right, -π/2 to π/2। ठीक है, एनी डाउट इन दिस युवराज? नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड वन। सेकंड इज y इज इक्वल टू cos x। ठीक है, cos का हमारा ग्राफ कैसे होगा? This is x, this is y, this is 0, this one is π/2, this is pi, this one 3π/2, this is -π/2, this is -π। ठीक है युवराज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द डोमेन। डोमेन कितना होगा इसका? सर इसमें डोमेन हो जाएगा -π to 1 मिनट सर y इज इक्वल टू cos x। तो सर इसमें डोमेन हमारा -3/3π/2 to 3π/2 हो जाएगा। युवराज आर कह सकते हैं हम डोमेन को? हाँ जी सर r हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब ये तो ग्राफ के हिसाब से बता। है ना, कुछ भी हो सकता है, आर हो गया। व्हाट इज द रेंज? सर 1 to -1। -1 to 1, बिल्कुल ठीक है। ठीक ये है, तो सर सभी के लिए सेम ही होगी रेंज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो इसके बीच में रहते हैं। बट वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, है ना, क्योंकि बाइजेक्टिव नहीं है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट अ लिमिट। तो लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ जो स्टैंडर्ड वो देता है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच है, दैट इज फ्रॉम 0 to π। तो इसको लर्न करना होगा। हम कुछ भी ले सकते हैं, वी कैन टेक 0 to π,
वी कैन टेक दिस कंप्लीट ऑल्सो माइनस पाई टू जीरो, बट प्रिंसिपल जी ब्रांच में वो फिक्स होती है, सो वी हैव टू टेक दिस जीरो टू पाई। सर इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्रिंसिपल ब्रांच की? प्रिंसिपल ब्रांच लिमिट होती है जिसके लिए वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। वो मैं अभी करवाऊंगा युवराज, ठीक है? अभी तो सिर्फ डोमेन एंड रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, एक मिनट। कंप्लीट, हाँ वो कंप्लीट डेफिनेशंस मैं भी करवाऊँ। इतना हो गया युवराज, इसको नोट कीजिए। ये सवाल। ओके ओके। डन सर। डन। ओके, फिर नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। इनवर्स कितना हो जाएगा? y x is equal to cos इनवर्स y, ठीक है? तो डोमेन, फर्स्ट डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेते हैं, फिर ग्राफ देख लेंगे। डोमेन इज व्हाट एंड रेंज इज व्हाट। सो यहाँ पहले कर लेते हैं, इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स। सर इनवर्स के लिए सर हमारी डोमेन हो जाएगी व्हाट यू से -1 to 1, n is -1, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट इज एंड रेंज? सर रेंज हमारी हो जाएगी 0 to π। 0 to पाई, बिल्कुल ठीक। ठीक, तो डोमेन इज -1 to 1 and range is 0 to pi, ठीक है? So what we have to do, we have to draw the graph of this. तो ये ग्राफ बनाने को आ सकता हाँ युवराज, काफ़ी पहले आया था, ठीक है? तो है? जी बहुत कम मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछते हुए। तो अब क्या करना है, सिर्फ दिस इज एक्स दिस इज वाई वैल्यूज को चेंज कर देना है, यहाँ लिख देना है आपने दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 0, ठीक है? जस्ट ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस। This is a graph of inverse. युवराज अभी कंटिन्यू करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है इसको? फिर सॉरी सर। अभी कंटिन्यू करें क्लास या फिर नेक्स्ट क्लास में फिर सेम टॉपिक्स कंटिन्यू करें? सर कर सकते हैं कंटिन्यू। आपकी भी क्लास तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरी अभी नहीं। सर मैं ये कह रहा था कि अभी तो आपके पास फ्री टाइम होगा ना अभी इस मंथ? जी युवराज, अभी है मेरे पास। तो सर फ्री टाइम होता है तो सर मेरी क्लासेस लगवा दिया करो, क्योंकि जितनी जल्दी सिलेबस हो जाए उतना बढ़िया है ना। ओके, ठीक है युवराज, फिर नेक्स्ट वीक से ना और स्पीड हम इंक्रीज कर देते हैं, टाइम जी थोड़ा सर। इंक्रीज कर देंगे, ठीक? जी सर। ओके ओके। दिस इज पाई, दिस इज पाई/2 एंड दिस वन इज 0। ठीक है युवराज, हो गया कंप्लीट? हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर। थर्ड वन इज y is equal to tan x, ठीक है? सो tan का ग्राफ फिर कैसा है? दिस इज 0, दिस इज
this pi by 2, this 3 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 pi by 2. ठीक, तो स्ट्रेट लाइन जैसे कुछ ऐसा होता है ग्राफ. ठीक है, टच नहीं करता है इसको. this similarly ये फिर आ जाता है पाई, this minus pi, ठीक है, y is equal to tan x. So प्रॉब्लम क्या है, tan x is what, sin x by cos x. ठीक है, तो अगर ये 90 होगा, x अगर 90 है, देन cos 90 हो जाएगा, और हमें पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसलिए पाई बाय 2 को टच नहीं करता है. ओके, व्हाट्स द डोमेन ऑफ दिस? एक मिनट यस सर सॉरी डोमेन क्या सर होगा? डोमेन सर इसका हो जाएगा इंफिनिटी. बट प्रॉब्लम क्या है, पाई बाय 2 के साथ है ना, cos x से, तो डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 नहीं आना चाहिए, और वी कैन से मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो सर r माइनस पाई बाय 2n, वी कैन से 2n plus 1 पाई बाय 2, 2n plus 1 पाई बाय 2 यस. है ना. हम कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ n, देन वी विल ऑलवेज गेट अ odd multiple of pi by 2. So this is domain. एक मिनट ये डोमेन है ना. This is domain. Now what is range? सर रेंज हो गई रेंज सर -1 to 1. नहीं, -1 to नहीं, ये complete आ रहा है ना, minus infinite to plus infinite, so we can say r. सर फिर लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा वो डिवाइड है. ओके यस सर, क्योंकि cos x अपॉन sin x अपॉन cos x है. तो हम यहाँ क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वी कांट पुट अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, बट हमें ग्राफ से देखना है रेंज कितना आ रहा है. रेंज y एक्सिस पे आता है, तो देखिए कंप्लीट y एक्सिस पे आ गया, तो माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, और वी कैन से कंप्लीट r. ठीक है व्रज? जी सर. ओके, अब अगेन वही सेम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें लेनी होगी. सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. इसका मतलब ये जो कंप्लीट आ रहा है, दिस वन, दिस माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, ये जो है दिस इज अ प्रिंसिपल ब्रांच. तो सर पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 राइट. माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू sin inverse y. So first we will find out the domain and range, फिर हम इससे ग्राफ ड्रॉ करें. सर sin इनवर्स y tan इनवर्स y. Sorry, y is equal to tan inverse. यस सर. Tan inverse y. So what's the domain? Domain क्या हो जाएगा यहाँ? सर डोमेन हमारा हो जाएगा tan इनवर्स y, तो डोमेन सर r हो जाएगा. Domain r हो जाएगा. And what is range? सर रेंज हमारी हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. बट ये क्लोज इंटरवल होगा, ये ओपन इंटरवल होगा? सर ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि कोई इंफिनिटी तक जाती है ना वैसे तो. बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाय 2 एंड माइनस पाई बाय 2. सो रेंज हम ये जो हमारे पास डोमेन हो जाएगा, दिस इज आर, एंड व्हाट इज रेंज? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, सो वी हैव दिस. This is x,
दिस वाई। सर एक क्वेश्चन था जी। सर, जो हमने नॉर्मल किया था y इज इक्वल टू tan x, उसमें डोमेन हमारी r माइनस 2n+1 π/2 आई थी। तो हमने यहाँ पे 2n+1 क्यों लिखा था, मतलब इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा था? ओके, बस एक मिनट बस। दिस π/2 minus π/2, दिस वन हमने ये लिखा था। यस सर। हाँ, इसमें इशू क्या था युवराज, जहाँ भी हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जैसे हमने चेक किया है π/2 पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ये कभी इसमें जी ना टच नहीं करता है, क्योंकि हाँ जी। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। यस सर। सिमिलरली 3π/2 में भी सेम इशू आएगा, जी। सेम 5π/2, 6, 7π/2। तो इसका ओके, मतलब तो ताकि वो ऑड रहे मल्टीपल उसका, तो 2n+1। इसलिए हमने 2n+1। अगर आप सिंपली n लिखते हैं और आप एक इवन नंबर पुट करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा। जी सर। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज रिमेन अ odd multiple of π/2 you will if we will use 2n+1। हाँ जी। ठीक है व्रज। ओके, जी सर। so this is a graph of tan inverse y। ठीक है, एक मिनट सर, मैं लिख लेता हूँ। okay। डन सर। Next y is equal to सर उसका नहीं करना कोसेक सेक वगैरह? इसके बाद करते हैं युवराज, tan और cot जैसे रिलेटेड होते हैं, जी सर। बेटर है उसको कर लें हम। सो नेक्स्ट इज दिस युवराज, दिस इज अ cot। तो डोमेन क्या होगा cot का? सर डोमेन हो जाएगा इन आर। डिनोमिनेटर में आर नहीं नहीं, सर, आर माइनस एन। r सर माइनस आर माइनस 2n-1 पाई बाय नहीं, आर माइनस एन पाई। r-n, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट रेंज कितना होगा? सर रेंज हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बिल्कुल ठीक है, रेंज r। आंसर इसमें प्रिंसिपल ब्रांच हम वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, जो हमने कॉस्ट में लिया था। ठीक है, ऐसे ही जी लर्न करेंगे हम। tan को हम रिलेट करेंगे साइन से और इसको हम करेंगे विद कॉस। तो कॉस में क्या था? 0 to पाई। जीरो। ठीक है, तो यहाँ भी 0 to पाई, बट 0 to पाई ओपन इंटरवल। यस ठीक है, एंड डोमेन इज सर। डोमेन अच्छा इनवर्स का ना?
सर डोमेन इज एक मिनट सर, डोमेन हमने 0 to पाई लिया ना, तो डोमेन तो सर हमारा इंफिनिटी नहीं हो जाएगा? कंप्लीट आ, ठीक है। सो नेक्स्ट इज x एक मिनट सर, मैंने नोट नहीं किया। ओके ओके व्रज। जी सर, थैंक यू सर। So next is x is equal to cot inverse y. अरे सर मैं बोल रहा था पेज टर्न करने के लिए। जी व्रज। तो मैं कह रहा था पेज टर्न करने के लिए थैंक यू। अच्छा अच्छा, सॉरी। जी व्रज, start. Okay. यस। So next is x is equal to cot inverse y. So domain and range हमने find कर लिया था. And range is 0 to pi. And this is r. This is x. This is y. Now this is pi. This is 0. Graph will be like this. ठीक, और ये हो जाएगा पाई बाय 2. Please note down this graph. सर बस ये इतना सही है। सिर्फ हम 0 to pi ले रहे हैं ना। ठीक, ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज फिफ्थ, y इज इक्वल टू cosec x। ठीक है, cosec का ग्राफ कैसा था? दिस इज x, दिस इज y, दिस इज 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2। ये तो tan वाला ग्राफ नहीं हो गया? नहीं नहीं, अभी वैसा नहीं हुआ। अब cosec pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है? सर cosec pi by 2 की वैल्यू एक मिनट सर, 2 सर 2 होती है, नहीं वेट, √2। नहीं नहीं नहीं, pi by 2 cosec क्या होता है? 1 by sin। अच्छा pi by 2, ओके सॉरी, हाँ जी सर। तो 1 by sin और sin की वैल्यू होगी 1, तो 1 होगी। 1 होगी, तो उसका ग्राफ जो होता है
what I like this. ठीक है, आप जैसे पैराबोला। नॉट पैराबोला, एक मिनट, दिस इज वन like this, somewhat like parabola, like this. Similarly 3 pi by 2 की वैल्यू कैसे हो जाती है -1, so graph will be like this. Similarly ये minus pi by 2 है, इसकी वैल्यू -1, like this. ठीक है, तो इसके पहले डोमेन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस एंड व्हाट इज द रेंज? पर डोमेन तो हमारा आर हो गया. डोमेन आर हो गया. यहाँ से चेक किया करिए युवराज, डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? फिर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो किसके लिए आता है? तो जीरो आता है 0 डिग्री. बिल्कुल ठीक है, जीरो है ना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई. तो डोमेन क्या नहीं होना चाहिए? 0 पाई 2 पाई नहीं होना चाहिए. तो डोमेन क्या हो? इवन नहीं होना चाहिए. वी कैन से द मल्टीपल ऑफ n पाई नहीं होना चाहिए. मतलब सीधा डायरेक्ट पाई की वैल्यू. r माइनस n है ना. सपोज अगर आप 0 पुट करते हैं, यू विल गेट r, सॉरी आपने 0 पुट किया, यू विल गेट 0, तो 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन. ठीक, अब रेंज इसकी बताएंगे युवराज? सर रेंज इसकी हो जाएगी इंफिनिटी टू 1, इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट 1 सॉलिड ब्रैकेट यूनियन -1 सॉलिड ब्रैकेट में और माइनस इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट. तो आप कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिट. यस सर. और वी कैन से r -1 to 1. एक ही बात होगी. Both the things are same. So please note down this. Okay. अब इसके लिए हम जो हिंट लेंगे फॉर इनवर्स एंड फॉर इनवर्स, ठीक है, तो हमें को रिलेट करके उसको लर्न करना है. सेपरेटली करेंगे हम, एग्जाम में कभी याद नहीं कर सकते. सो प्रिंसिपल ब्रांच साइन के केस में क्या थी? सर ब्रांच साइन के केस में थी π/2 -π/2. बिल्कुल ठीक है, -π/2 to π/2. यस. सेम वही हम यहाँ भी लेंगे प्रिंसिपल ब्रांच. ठीक है, ठीक है, बट प्रॉब्लम कुछ आएगी अगर हम -π/2 to π/2 ले रहे हैं. कोई प्रॉब्लम आ रही है? वाला तो आएगा, जीरो भी तो आएगा फिर वो. तो जीरो नहीं होना चाहिए. जी सर. तो कितना आ जाएगा फिर सॉल्यूशन? सर तो इसमें डोमेन हो गया हमारा -π/2 कॉमा पाई, सॉरी पाई कॉमा π/2 माइनस ऑफ 0 बाहर लेके -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0. एक्सेप्ट 0. यस सर. ये रेंज हो जाएगा. आंसर डोमेन हमारी वही होगी जो पिछले की रेंज थी. तो इसमें डोमेन कितनी हो जाएगी? सर r -1,1. -1,1. जी सर. तो ये आ गया हमारे पास फिफ्थ. तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम. x इज इक्वल टू cosec इनवर्स y. ठीक है, सो दिस इज π/2, दिस इज -π/2, ये 1 हो गया, -1 हो गया, ये 1 हो गया, -1. ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा लाइक दिस. ये माइनस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा.
दिस माइनस पाई बाई 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, इट विल गो लाइक दिस। ठीक है ब्रज, ऐसे ग्राफ। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट सर। ठीक है, डोमेन हमारा कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सॉरी, डोमेन एंड रेंज। सो रेंज हमारा कितना आ गया, दिस इज, हमने शायद कोऑर्डिनेट्स थोड़े ले लिए, लाइक एक्स वाई। जी युवराज, this is y, this is x, and domain this is r except -1 to 1. ठीक है, note down this Yuvraj, then we will start next. हो गया इतना? एक मिनट सर, बस रेंज और डोमेन। ओके ओके, फिर -1, राउंड ब्रैकेट में क्यों है? हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं। डोमेन हमने क्या किया, r एक्सेप्ट दिस वैल्यू, क्योंकि -1 एंड 1 तो था हमारा, अच्छा इंक्लूडेड था, यस है ना, ये वैल्यू तो थी हमारे पास, बट इसमें मिडिल जो है वो नहीं था। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8th वन, y इज इक्वल टू sec x, तो ये कितना हो जाएगा, this is pi by 2, this is minus pi by 2 and this is 0, तो इसको हम करते हैं 1 बाय cos हो जाता है। अब cos, ये डिनोमिनेटर किसके लिए 0 होते हैं? सर cos x डिनोमिनेटर 90 डिग्री के लिए जो पाए हो गया। हाँ, तो 90 के लिए, हाँ 90 के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, टच नहीं करेगा ये 90 को। जी सर। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? सर डोमेन r हो जाएगा फिर तो। डोमेन r एक्सेप्ट ऑफ हमें पाई बाय 2 नहीं इंक्लूड करना किसी का भी, तो हो जाएगा। एक मिनट सर, मैं सोच रहा हूँ सर। एक्सेप्ट ऑफ 2n-1 पाई बाय 2। 2n plus 1 pi by 2, and what is range? सर रेंज होगी हमारी r माइनस ऑफ 1,1 -1,1। ठीक है, क्योंकि सेम ग्राफ ऐसे भी आता है, तो रेंजेस आर एक्सेप्ट -1 to 1। ओके, इसको नोट जी सर, कीजिए। एक मिनट नोट कर लेता हूँ। जी, सर ये 6th वाला हुआ ना? ये, हाँ सॉरी, दिस इज 6। सर इसका इतना सही ग्राफ बनाना छोटा सा। इसका इतना ही करते हैं, उसके बाद वैल्यूज रिपीट ही हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट फिर हम फाइंड करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स। एक डोमेन, मिनट। तो फर्स्ट थिंग प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इसको हम कंपेयर करते हैं विद कॉस। तो कॉस में क्या थी? सर कॉस्ट से कंपेयर करना है, कॉस्ट में थी सर 0 टू पाई। 0 to pi। ये सर कॉट में भी हुई थी। तो 0 to pi, बट कुछ एक्सेप्शन है, कोई पार्ट है जो हमें नहीं लेना? वो सर पाई बाय 2 वाला, तो 2n+1 पाई बाय 2। माइनस पाई बाई 2 क्या है? माइनस पाई बाय 2 सर एक ही तो आता है। यस डोमेन क्या होगा? सर डोमेन r -1/1। r -1। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स y। सो डोमेन रेंज हमने फाइंड कर दिया इसका, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो रेंज हमारा कितना आ गया था, दिस इज 0 to pi एक्सेप्ट पाई बाई 2,
एंड डोमेन जो आ जाएगा दिस इज आर एक्सेप्ट -1 to 1। ये करते हैं हम। This is x, this is y, this is 0, this is pi by 2, and this one is pi. This is -1, this one. 0 की value हमारी 1, so graph will be like this. और pi के लिए हमारी value -1 है, so this will ठीक है। So this is a graph of x is equal to sec inverse 1। ठीक, युवराज हो गया कंप्लीट ये? जी सर। ठीक है, फिर एक समरी फॉर्म करते हैं युवराज, ताकि हमें फॉर्मूलेस याद रहेंगे फिर। ठीक है जी सर। Okay. So this is sin inverse, cos inverse, tan inverse, fourth cot inverse, fifth is cosec inverse, next sixth is sec inverse। ठीक है, ये आ गया हमारा डोमेन, ये आ गया हमारा रेंज, और रेंज हम लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, सो साइन इनवर्स का डोमेन कितना हो गया युवराज? युवराज अब नोटबुक नहीं देखनी है, ठीक है, डायरेक्टली करना है। साइन इनवर्स का डोमेन कितना होगा? एक मिनट सर, क्योंकि हम इससे ना कंपेयर करके फिर सारे वैल्यूज लर्न जी करें। सर। सर डोमेन साइन इनवर्स का हो जाएगा आर। नहीं, -1 to 1। साइन इनवर्स, ओके सॉरी सर, तो -1 कॉमा, यस। रेंज क्या था इसका? तो ये तो सभी का -1 कॉमा 1 ही होगा। अब ये भी देखते हैं युवराज, सब डिस्कस करेंगे। रेंज क्या होगा? सर रेंज होगा हमारा ब्रांच वाला, एक मिनट सर, -π/2 to π, π/2। -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स में डोमेन कितना है? सर -1 कॉमा 1, ये कितना है? सर ये हो जाएगा हमारा 0 कॉमा π। 0, π, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डोमेन तो याद रहेगा। tan इनवर्स में डोमेन कितना होगा? सर -∞ to ∞। हाँ, इसको आर कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें यहाँ रेंज में आएगी, तो हम tan इनवर्स के लिए किसकी हेल्प लेंगे? साइन की। सर वो तो मेरे को याद है, साइन का हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा -π/2 कॉमा π/2 माइनस, और क्योंकि tan में नीचे आता है cos, तो cos की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री हो गया हमारा युवराज। साइन बाय कॉस, कॉस 0 किसके लिए होते हैं? 90 के लिए, सॉरी। तो ये हो गया सर n π। नहीं, एक मिनट, रजिस्टर π/2 होता है, अरे क्या कर रहा हूँ सर, 2n + 1 π/2। नहीं, क्या होगा सर? हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना अभी, हमें चेक कर रहे हैं। देखिए हमने कैसे रिलेट करना है, ये तो ठीक है। tan के लिए हमें यहाँ अप्रोच करना है साइन को। साइन में -π/2 था, हमने सेम लिख दिया। अब इसमें से हमें देखनी कौन सी वैल्यू tan में नहीं आती है। इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं आती है tan में? सर -π/2 और π/2, हाँ, तो राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है व्रज, क्लियर हुआ? यस सर। एग्जाम में ना ऐसे ही लर्न करना है। वहां अगर सेपरेटली सब याद करने बैठ गए, बिल्कुल बोर्ड्स में याद नहीं रहेगा। कॉट इनवर्स में डोमेन सर कॉट इनवर्स में भी आर होता है, डोमेन आर होता है। इसके लिए क्या करना है, जो कॉस था वही लिख देना है, 0 0 कॉमा π आ जाएगा, 0 कॉमा π राउंड ब्रैकेट्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओपन इंटरवल। कोसेक के लिए डोमेन कितना होता है? सर कोसेक के लिए डोमेन हो गया -1 कॉमा 1। नहीं नहीं नहीं, कोसेक के लिए
ये था ना? अच्छा ओ, हाँ जी। है ना? तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो लर्न हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ। तो इसके लिए क्या करना है, इसको भी कंपेयर करना है साइन। तो साइन में जो यस, था उसको लिख देना है बस। फिर चेक करना है कि कॉसेक में क्यों कौन सी वैल्यू नहीं आनी चाहिए इस इंटरवल तो में। 1/sin जिसके लिए 0 होता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, और वो हो गया हमारा 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब माइनस, तो 90 डिग्रीज हो गया π/2। नहीं तो नहीं इसमें आ गया नहीं, क्या कहते 1/sin होता है ना, हैं, तो यस सर, डिनोमिनेटर में ये किसके लिए जीरो होगा? 90 डिग्रीज। नहीं, नहीं सो वो क्या करोगे 0 डिग्री जीरो के लिए तो क्या करना है, माइनस जीरो कर देना है। अब यहाँ -0। क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल? सर क्लोज इंटरवल, क्या क्लोज। नहीं, ओपन इंटरवल या क्लोज, एक मिनट। हाँ, क्लोज ना, क्योंकि पाई बाय क्लोज दिया, सकता है। वैल्यू तो सारी आएगी जो साइन की है, यस सर। ठीक है, सेक में क्या होगा? सर सेक में हो जाएगा r -1,1, बिल्कुल ठीक है। और रेंज हो जाएगी सर इसकी 0, हम्म क्लोज ब्रैकेट में हम्म माइनस ऑफ, एक मिनट सर सोच लो, हम्म, cos 90 डिग्री, इसमें π/2 हो जाएगा सर बीच में से, -π/2। पाई बाय। ठीक है, तो युवराज ये ना 1 मार्क में क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या करना है एग्जाम में, जल्दी से टेबल फॉर्म करना है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। डोमेन तो आप कर लेंगे, वो मुझे पता है, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, साइन से याद रहता है, रेंज में ही आती है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न साइन एंड कॉस ओनली। तो साइन के लिए क्या लेना है यहाँ? सर साइन के लिए हमारा हो जाएगा रेंज -π/2 टू π/2, क्लोज ब्रैकेट्स में। -π/2 टू π/2, एंड दिस कॉस? सर कॉस के लिए हो जाएगा हमारा, सर कॉस के लिए हमारा 0, π। 0, ठीक है, बस यही दोनों लर्न करने हैं और कुछ नहीं करना। फिर क्या करना है, टैन है तो उसमें साइन यूज कर लेना है, जो भी साइन का था। अब चेक जी कर सर, इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू है जो टैन बस में नहीं है। क्लोज में बस क्लोज ब्रैकेट लग जाएंगे, कॉट वाले में सेम टू सेम कॉस वाला आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट्स के साथ, ओपन, हाँ जी सर, क्लोज के साथ। हम्म क्लोज सर, ये क्लोज होता था ओपन होता था? ये ओपन होता है, दिस इज ओपन। ओपन, हाँ जी सर, ओपन के साथ सर। एंड क्या कहते हैं, कोसेक वाले में सर हमारा आ जाएगा साइन वाला माइनस, इसमें से हम निकाल देंगे 0, -0। आंसर जो सेक वाला हो जाएगा उसमें π/2 निकल जाएगा, कॉस वाले का 0 और -π/2। बिल्कुल ठीक है, तो इसको लर्न करने की युवराज जरूरत है, जैसे याद रहेगा आप टेबल से। सर टेबल से याद रहेगा, मैं नोट डाउन कर रहा था टेबल। हाँ, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड लर्न करना है, बाकी सब सिर्फ याद रखना है, टैन एंड कोसेक को वी हैव टू कंपेयर विद साइन। सर वैसे इसमें कुछ बात करने वाला है नहीं, बस रिलेट ही तो करना है, और उसमें ये तो टेक्निकल है कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए तभी वो रेंज बनेगी। तो हम्म पाई -π/2 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है युवराज की, जब बोर्ड्स में आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक तो स्ट्रेस होता है, फिर चैप्टर्स इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि इसको डायरेक्टली लर्न नहीं करना, तो फर्स्ट और सेकंड करना है, और सब ऐसे कर लेना है। जी सर, ठीक है, ठीक है युवराज, फिर क्लास आज ओवर करते हैं। एक और मिनट नोट डाउन कर लूँ, स्क्रीन में अच्छा, डन सर। ठीक है, फिर युवराज जितना किया है उसको प्लीज रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डन सर। ठीक है, प्लस युवराज हम बुक्स कौन सी फॉलो करेंगे, अभी वी विल फॉलो एनसीईआरटी। सर आरडी करते हैं ना सीधा? हाँ नहीं नहीं, एनसीईआरटी, बट इसको हमेशा करना है। ठीक, वो दूसरी बात है, आप आरडी करें एनसीईआरटी कवर्ड हो जाती है, बट ये तो करनी है आपको। प्लस असाइनमेंट्स करते हैं, ठीक, और असाइनमेंट्स आरडीए क्वेश्चन ही होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टली आप आरडी कर रहे हैं या असाइनमेंट के थ्रू, वो हम डिसाइड कर लेंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स भी करेंगे हम। प्लस आपके स्कूल में जो असाइनमेंट्स होते हैं, किसमें सर? आपके स्कूल में असाइनमेंट्स देते थे ना, या वो लास्ट सर स्कूल में? वो टीचर चेंज हो गए, हम कोशिश कर रहे टीचर वापस आ जाए, वो वाले अच्छे थे वो टीचर। ओके 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 ओके,
तो ठीक है, अगर स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते हैं तो उसको भी हम कर लेंगे, अदरवाइज दिस 3। जी सर। ठीक, ठीक है युवराज फिर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।